Cisalpinaceae and Mimosaceae. So out of these, we have studied and completed two families, that is Papilionoideae and Cisalpinoideae. And third family even we have started, that is family Mimosaidae. आप सभी लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. ओके. क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है या क्या नहीं? हो रहा है सर. हो रहा है. अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? Floral characters. माइमोसाइडी दिख रही है. दिख रहा है सब कुछ? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Which are these three photographs? Anybody? First one, this one. कौन से प्लांट का है? कल हमने बाबू प्लांट का था. बाबुल का है. And these are the pods of babul, that is a fruit. And these fruits are of lomentum type of fruit. Lomentum means constricted pod. Lomentum, lomentum. And these are the inflorescence. You observe these are large number of flower. You just observe these flowers. अगर ये फ्लावर देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे बहुत सारे हैं. सो फर्स्ट वन इज babul, that is Acacia consina or Acacia arabica. Now you can observe the photographs of babul. To be more precise, these are the compound leaves or leaflets, and you can observe even number of leaflets on each rachis. Rachis पर even number of leaflets है. अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. नॉर्मली 7 से 8 leaflets है. One thing. Second thing, next photograph is of which one? Chui mui, or which is known as Mimosa pudica, or which is in Marathi known as Lazaru, or which is known as a Lajavanti. You can again observe the similar type of flowers, that is just a globose, and it has filaments which are pink color. Now you just observe the filaments in all these three photographs. पहले फोटोग्राफ में एक्सेसिया में आपने येलो कलर के देख रहे. सेकंड फोटोग्राफ मैंने बताया माइमोसा पुडिका या लाजारू या लाजवंती का है, एंड या चुई मुई बोलते हैं, एंड इट हैज पिंक कलर ऑफ द फिलामेंट्स. एंड थर्ड वन दैट इज ऑफ पिथोकोलोबियम और अल्बिजिया शिरीष का है ये. इसमें देखोगे तो थोड़े से व्हाइटिश या पिंकिश कलर के. We have also studied one more genera, that is Calliandra from the same family. Let us, so with this we are going to study this family Mimosaidae or Mimosaceae. Now whenever we are going to study the family, normally we are going to start it with geographical distribution of that family, number of genera and species present in the world, in the country, in the state, etc. After that we come across number of genera which are familiar or easily available in our area, then economic importance of family, and after that number of genera which are available in as far as their general account considered, and then we start to study the characteristic features of family itself. Now whenever you are going to study the family for theoretical purpose or for theory purpose, you have to go through all the individuals or genera, at least important genera which belongs to that particular family. But whenever you are going to study the family for practical, in front of you either one or two species or one or two genera are available, and you are going to describe that family, or rather more precise, you are going to describe that genera or plant as a representative of that family. So this is the difference. I think many times all of you are known. We say that XYZ members are tree, ABC members are shrub, and for example PQR members are herbs, etc. So you just remember the differences. Now I can give you some differences. Just we will consider. In case of Acacia arabica or Acacia nilotica or Acacia or babul, what kind of nature of plant is, whether it is a herb or it is a shrub or it is a tree? Hello? Hello? Yes, sir. Babul. Yes, Tree. shrub है या tree है? Tree है, tree.
ट्री है. Okay. Then what about चुई मुई और माइमोसा पुडिका? shrub. श्रब है. ओके राइट. अप टू 1, 2, 3 फीट तक बढ़ता है. एंड व्हाट अबाउट अल्बिजिया? ये पता नहीं. Albizia is a huge tree. Remember, albizia is a huge tree. It is present along the roadside. और एक प्लांट शायद आपको पता होगा, पिथोकोलोबियम डलसाई. क्या आपने ये पिथोकोलोबियम डलसाई प्लांट के बारे में कुछ सुना है? हेलो. नो सर. पिथोकोलोबियम डलसाई, इस प्लांट के बारे में मैं पहले बताता हूँ. पिथोकोलोबियम डलसाई मीन्स आप जिसको बोलते हैं, नाम है प्लांट का जंगल जिलेबी, या आप बोलते हैं चिंच बिलायत. चिंच बिलायत. हेलो. नहीं सुना है सर. पहले क्या बोले? चिंच बिलायत या जंगल जिलेबी. मैं बताता हूँ. यस सर, सुना है. सुना है. सुना है. तो उसके फ्रूट्स यूटिलाइज किए हैं आप लोगों ने? यस सर, उसे खाते हैं. Yes sir. एक सेकंड मैं उसका फोटोग्राफ दिखाता, so that it is easy to understand, because we should be known with number of genera from the same family. चलो, have you observed this photograph? Yes sir. Yes. Just a minute. So I think you are not familiar with this one. Have you observed? Yes sir. Now is it Yes clear? sir. Yes I sir. think many of you, whenever going in a primary school, just in front of a school, these pods or these fruits are available for selling, isn't it? Yes sir. This white colored Yes, sir. substance is somewhat sweet, and it is known as a aril, and it is utilized for many more purpose, by many more people. So these are the fruits of Pithocolobium dulci, या नहीं तो इसका नाम है इंगा डलसाई, INGA, इंगा डलसाई. मैं इसका प्लांट कहाँ है आपको बताता हूँ. महाराज बाग चौक के सामने जो अपना वाड़ी की तरफ से आते हैं, उसी जगह पे अपना बस स्टॉप है. वाड़ी से महाराज बाग तरफ आते वक्त सिग्नल के पहले बस स्टॉप है. वहां लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे प्लांट्स इसके हैं. नहीं तो हिस्लॉप कॉलेज का जो रोड है उस रोड पर भी है. एंड दिस वन इज पिथोकोलोबियम डलसाई और इंगा डलसाई, एंड इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली. अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरा भी फोटोग्राफ दिखाता हूँ. So I think many of you are now familiar with this plant, that is Pithocolobium dulci, isn't it? Yes sir. Okay. Yes sir. मैं और एक प्लांट के बारे में आपको बताता हूँ, just if it is possible. So how many of you are known with this plant, Samania saman? बहुत बड़ा ट्री होता है along the roadside, and this tree also belongs to family that is Mimosaceae, that is Samania saman. अब देखो तो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ध्यान में आएगा है. यू जस्ट यहाँ देखो, फर्स्ट फोटोग्राफ है, उसमें कैनोपी देखो, हाउ मच इट इज ह्यूज. इट कवर्स मोर देन 100 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ अ कैनोपी. 100 स्क्वायर मीटर का करीबन एरिया कवर करता है. एंड इट इज आल्सो नोन एज रेन ट्री, और इट इज आल्सो नोन एज इंडियन रेन ट्री. इसका रीजन ये है कि इट इज अ ह्यूज ट्री, और इसीलिए पहले बारिश जो होती है तो कैनोपी में पहले इस प्लांट पे आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंडियन रेन ट्री. समानिया समान, इट आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली. ओके, देन पहले हम जो शुरू किए थे अपनी पीपीटी, उसके तरफ देखते. सो यू जस्ट गो थ्रू फ्रंट स्लाइड ऑफ पीपीटी एंड यू जस्ट गो व्हाट आर द डिफरेंट जनरा मेंशन्ड हियर. अकेसिया. अब अकेसिया में बहुत सारे स्पेसीज है. अकेसिया कॉन्सिना है, अकेसिया निलोटिका है, फिर मैंने और एक बताया था अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस. ऑरिकुलिफॉर्मिस मींस ऑस्ट्रेलियन अकेसिया. मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब भी आप बैठते हैं, during that time you keep your one notebook, pencil and or pen and write down at least some features. Many times what happens, we try to explain the things and in a flow you just hear it and left, but you should know all these things. So
मैंने अकेसिया के बारे में 2-3 स्पेसीज अभी बताए थे. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ अकेसिया. उसके बाद अल्बिजिया प्रोसेरा, मैंने नाम बताया था, शिरीष. उसके बाद में नेक्स्ट स्पेसीज है एंटरोलोबियम, इसका आपको जनरा मालूम नहीं है. नेक्स्ट है ल्यूकेनिया. क्या ये ल्यूकेनिया के बारे में आपको पता है? एनीबडी? हेलो, ल्यूकेनिया. ल्यूकेनिया Yes, sir. किसी को पता है क्या है ल्यूकेनिया? एनीबडी? है तो है बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, कोई बात नहीं है. नहीं पता सर. नो सर. क्या मराठी में आपने सुबाबुल नाम सुना है? क्या सर? कौन सा सर? सुबाबुल. हाँ सर. हाँ, नहीं तो नहीं सर नहीं. हो सकता है कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा. Now, as far as this Leukemia leukocephala plant considered, in Marathi it is known as subabul. Su means like babul, subabul, and it is used as a fodder plant. Fodder plant करके use करते. Fodder मतलब the plant which is used for feeding domestic animals like sheep and goats. So normally this subabul or Leukemia leukocephala is planted along the bunds of a field. बंड म्हणजे बांध, शेताच्या बांधावरती लावले जातात. दीज आर सपोज टू बी विंड ब्रेकर्स अँड दे आर गुड सोर्सेस ऑफ अ लिपी मटेरियल, सो यूज्ड एज अ फॉडर. क्या आप फोटोग्राफ देख रहे हैं अभी? यस Yes, sir. यस, मैं आपको और कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ. ल्यूकेनिया ल्यूकोसिपेला. सो दिस प्लांट इज नोन एज अ सुबाबुल एंड इट इज यूज्ड बाय सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट. जहाँ कोई भी आप प्लांट रेज नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ऐसे जगह पे ल्यूकेनिया ल्यूकोसिपेला या सुबाबुल लगाते हैं. मैंने अभी आपको बताया था कि सुबाबुल इज आल्सो प्लांटेड ऑन द बंड्स ऑफ अ फील्ड. So now I think you are more familiar with this Leukemia leukocephala. So this one is also known to you. मैं just और सामने जाता हूँ, अभी अपना डिस्क्रिप्शन बचा है. So ल्यूकेनिया, देन माइमोसा हमने देखा है. नेप्ट्यूनिया में भी also not known to you. Then regarding this one, that is प्रोसोपिस. क्या मैंने प्रोसोपिस के बारे में कल बताया था कुछ? एनीथिंग? नो सर. हेलो, क्या मैंने शमी करके प्लांट का नाम बताया था? यस सर. यस सर. प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज आल्सो नोन एज ए शमी. मैंने शायद आपको बताया था गणेश जी को शमी पत्रे या शमी लीव्स यूज करते हैं. नहीं तो शायद इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज यू माइट हैव स्टडीड दैट पांडवा हैज केप्ट देयर weapons on this tree, that is shami tree, during their Ajnatwas period. Is it known to you? यस सर. Yes sir. पांडवांनी अज्ञातवासाच्या कालखंडामध्ये त्यांची शस्त्र शमीच्या झाडावरती लपवून ठेवली होती, असा पौराणिक स्टोरीज ज्या आहेत त्या स्टोरीज मध्ये रेफरन्स आढळतो. अँड दिस शमी प्लांट दॅट इज नथिंग बट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा. So whatever figure I am showing you is Prosopis juliflora, and normally these plants are huge tree, and normally they are observed along the roadside or even on the railway track. Railway track के बाजू में ये plant आपको दिखने मिलते हैं, and the name of the plant is Prosopis juliflora. ठीक है, हम प्रोसोपिस की भी बात छोड़ देते, हम अपना जो प्रेजेंटेशन में हम जहाँ है वहां फिर से वापस जाते. So Prosopis, then Pithecollobium. Have you heard about Pithecollobium? Hello, anybody? No sir. No sir. आता तुम्हाला फटके द्यावे लागतील. मैंने 2 मिनट पहले आपको पिथेकोलोबियम डलसाई है, इंगा डलसाई का प्लांट दिखाया था. क्या नाम था उसका? क्या नाम था प्लांट का? चींच विलायत. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ध्यान नहीं देते. पिथेकोलोबियम डलसाई या इंगा डलसाई, आल्सो नोन एज चिंच विलायत और विलायती चिंच, और इट इज आल्सो नोन एज जंगल जिलेबी एक्सेट्रा. सो पिथेकोलोबियम. उसके बाद नेक्स्ट जनरा है झाइलिया. क्या आपने ये जनरा का नाम सुना है कभी? झाइलिया, झाइलोकार्पा. हेलो हेलो, झाइलिया
झाइलोकार्पा, ये नाम सुना है क्या? हेलो, No, sir. Yes, sir. झाइलिया झाइलोकार्पा। अब मैं आपको झाइलिया झाइलोकार्पा प्लांट दिखाता हूँ। यू कैन ऑब्जर्व दिस प्लांट, थोड़े से लीफ अलग है, बाकी फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही है। और झाइलिया झाइलोकार्पा का खास करके हम देखते हैं वुड। क्यों वुड के बारे में हम देखते हैं? देखो यहाँ मैंने वुड के लॉग्स दिखाए हैं जो कट किए हैं। सपोज टू बी वुड ऑफ झाइलिया झाइलोकार्पा इज हार्डेस्ट वुड, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ऐसा हार्डेस्ट वुड है झाइलिया झाइलोकार्पा। तो अभी आपके ध्यान में आएगा। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. झाइलिया झाइलोकार्पा, मैं फिर से आपको थोड़ा सा विकिपीडिया में ले जाता हूँ। क्या आप सभी लोगों को विकिपीडिया के बारे में मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Wikipedia is supposed to be free encyclopedia available on the website. You can go through any subject, any language, you can have ample information, and this information is freely available. So you go through it. So this plant Xylia xylocarpa again belongs to family अपनी Mimosaidae or Mimosaceae. Let us have a look regarding if available xylocarpa wood and its इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस। मैं आपको और एक बात बताने वाला हूँ। सर, इसका वुड मीट कटिंग के लिए यूज किया जाता है क्या? शायद। हाँ, बताता हूँ मैं 2 मिनट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले हम झाइलिया झाइलोकार्पा के बारे में जनरल देखते हैं। झाइलिया झाइलोकार्पा इज अ डेसिडुअस ट्री with dense crowns usually growing 20 to 40 meter tall. You just imagine 20 to 40 meter. 40 meter means about 110 feet, 120 feet or even more than that. Through on dry and poor sites. The tree may be smaller and the bole crooked. The bole is usually straight and cylindrical. Sometimes the small buttresses, it can be underbranched for 12 meter or more and around 40 to 60 centimeter in diameter. अब झाइलिया झाइलोकार्पा के बाकी डिटेल्स ना देखते हुए हम देखते हैं यूजेस। देखो, एग्रोफॉरेस्ट्री यूजेस, लीव्स आर यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर इन अरेका कल्चर्स। हम अरेका कल्चर के बारे में बाद में देखते हैं, लेकिन लीव्स आर यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर। अदर यूजेस देखो, द बार्क एंड वुड आर सोर्स ऑफ टैनिन। क्या आपको पता है कि टैनिन्स आर सोर्सेस ऑफ ग्लूकोसाइडल कंपाउंड्स? हेलो, Yes, sir. tannins are sources of glucosidal compounds and glucosidal compounds are very much important. शायद आपको पता होगा, these are supposed to be primary or to be more precise secondary metabolites. Then देखो, the red resin is obtained from trunk या stem से red resin obtain करते हैं। Oil is obtained from the seed, oil भी use करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द हार्डवुड इज डार्क, स्लाइटली स्ट्रेक्ट एंड वेरी फाइन। इट इज क्लियरली डिमार्केटेड फ्रॉम द थिक येलोइश व्हाइट सैपवुड। सैपवुड का मतलब है पेरीफेरी का और हार्डवुड का मतलब है सेंट्रल पोर्शन का। आपने वुड का कट किया हुआ पोर्शन देखा होगा। तो जस्ट मैं आपको और एक हार्डवुड और सैपवुड में पहले आपको दिखाता हूं, सो दैट यू कैन हैव आइडिया। जस्ट अ मिनट। हार्ड वुड एंड सैपवुड, मैं फिर से आपको बताता हूँ हार्टवुड एंड सैपवुड। तो आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व दिस फोटोग्राफ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अब इस फोटोग्राफ में सिलिंड्रिकल स्टेम जो था उसको कट किया। कट करने के बाद सेंट्रल पोर्शन जो है वो कलरफुल दिख रहा है एंड दिस सेंट्रल पोर्शन is known as heartwood. This entire portion is heartwood, but supposed to be this much portion is heartwood. And yellow colored या थोड़ा सा whitish color का जो लग रहा है, that is sapwood. तो आपके ध्यान में आया, जब भी आप फर्नीचर के लिए वुड लेने को जाते हैं तो आप बोलते सेंट्रल वुड दे दो, नहीं तो मराठी में आप बोलते गाभ्याचं वुड पाहिजे। इज इट राइट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, so the second thing is that heartwood shows presence of color because whatever dye is present, these dyes are concentrated in the central portion. Now I can give you another simple example, that is in case of our
सॅन्टॅलम अल्बम और चंदन, चंदनाच्या झाडाबद्दल तुम्हाला माहिती असेल, चंदनाचं ऑइल काढण्याकरता बेसिकली उपयोग करतात तो म्हणजे सॅन्टॅलम अल्बम किंवा चंदनाच्या हार्टवुडचा, बिकॉज हार्टवुड शोज प्रेझेन्स ऑफ ऑयल, जो डिस्टिल किया जाता है वो ऑयल हार्टवुड में रहता है. सो आई थिंक इट इज आल्सो नोन टू यू. तो हम लोग अभी देख रहे थे अपना, जस्ट मिनट, हम लोग अभी आए थे झाइलिया के बारे में. कोई आप में से बोल रहा था कि मीट कट करने के लिए बेस करके उसका यूज करते हैं, इजंट इट? हेलो. हाँ सर. तो इट्स ऑलराइट, इट्स राइट, एग्जैक्टली राइट, बिकॉज इट इज सपोज टू बी हार्ड वुड. हार्ड नहीं, हार्ड है, और दैट्स व्हाई दिस वुड इज यूज्ड फॉर base for meat cutting. So it is also known to you. फिर हम दूसरा ये देखते हैं, जस्ट मिनट. फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट झाइलिया के बारे में बताया, इट इज हार्डवुड. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसोपिस. प्रोसोपिस मतलब शमी, मैंने अभी अभी आपको बताया था. उसके बाद आप सभी लोगों ने एंटेडा देखा है, मैंने बार बार एंटेडा के बारे में बताया था. एंटेडा फोइटिडा मीन्स जिबली, और फैमिली फैबेसिका लार्जेस्ट फ्रूट जो इट इज अबाउट 1.5 मीटर, दैट इज अबाउट 5 to 6 feet, दैट इज एंटेडा. एंटेडा का फैबेसी फैमिली के जो मैंने स्लाइड्स दिखाए थे उसमें एंटेडा का फ्रूट दिखाया था. उसके बाद पार्किया बिगलैंडुजा, किंवा इट इज सपोज टू बी कॉल्ड एज अ टेटू. देन एडिनथेरा पैरोनिया, मैंने कल आपको बताया था कि एडिनथेरा मीन्स धोरगुंज या एडिनथेरा बताया था, इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली एडिनथेरा. देन पिप्टेडेनिया. सो दीज आर सम ऑफ द जनरा. अभी हम जैसे फैमिली देखते हैं, शुरू से देखते हैं, फैमिली माइमोसाइडी और माइमोसैसी इंक्लूड्स 40 जनरा. कितने? 4040. And at the same time has been considered to be the smallest one of all the three family. 3 सब फैमिली कौन से? पैपिलियोनेसी, सिसाल्पिनोइडी और माइमोसाइडी. इन तीनों में this family is smallest family, or it is supposed to be 3 families of order Leguminales. Just a minute. Now distribution. मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोटेनिस्ट should have good deal of knowledge regarding the geography. Distribution of Mimosaceae. So you just observe, it is commonly called as Acacia family. It includes 40 genera and 2000 species. Members are mostly distributed in tropical and subtropical regions of the world. Members कहाँ है? Tropical and subtropical regions of the world. Let me show you tropical, regarding the tropical and subtropical regions, because every time we are using the tropical and subtropical regions. अब यहाँ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आपको दिखेगा. क्या ये फिगर आप सभी लोगों को दिख रही? हेलो. यस सर. एक मिनट. Yes, sir. ये फिगर दिख रही सभी लोगों को? Yes, sir. चलो मैं एक और काम करता आपके लिए. ये फिगर मैं अपने प्रेजेंटेशन में डाल के हम देखेंगे, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. जस्ट अ मिनट. प्रेजेंटेशन में दिख रहा है आपको? हेलो. क्या प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स कौन से हैं? Yes, sir. यस सर. हम हमेशा यूज करते हैं टर्म इट इज फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन, इट इज फ्रॉम टेम्परेट रीजन, इट इज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन, और इट इज फ्रॉम पोलर रीजन. सो व्हाट दीज थिंग्स आर, इट शुड बी क्लियर. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. शायद आपको पता होगा कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ देखो, ये है अपना इक्वेटर और 0 डिग्री. क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा देखने दो कि कौन कौन लोग, अभी कितने लोग प्रेजेंट है अभी? सर 62. 61. 63 है.
65, जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, कहाँ गया मीट, 65 है, ओके 65 है, मैक्सिमम इतने ही थे ना? सर Yes, sir. मैक्सिमम 67। 67 थे, ओके। थोड़ा सा ध्यान रखो आज कितने हैं, वैसे भी मैं प्रेजेंट तो ले लूंगा, कोई सवाल नहीं है, ओके। चलो, तो हम पहले देख लेते 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ की तरफ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ को हम बोल रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री टुवर्ड द नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री टुवर्ड द साउथ, मतलब दिस रेड कलर्ड बेल्ट जो है विच इज नोन एज अ ट्रॉपिकल बेल्ट, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. मतलब इसमें जितने कंट्रीज है उतने। चलो नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट जो ग्रीन कलर दिखाया है दैट इज अबाउट 23.5 से लेकर 66.5 तक, विच इज नोन एज सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, मतलब 23.5 टू 66.5 डिग्री टुवर्ड द नॉर्थ एज वेल एज साउथ, इसको हम बोलते हैं कौन सा, दैट इज सब ट्रॉपिकल जोन और इट इज नोन एज अ टेम्परेट जोन। अगर जरूरत है तो अपने नोटबुक में लिख के रखो, हम हमेशा टर्म यूज करते हैं कि ये प्लांट ट्रॉपिकल का है, ये प्लांट सब ट्रॉपिकल का है या टेम्परेट का है और ये प्लांट पोलर का है। नेक्स्ट देखते 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ, दैट इज पोल और इट इज नोन एज अ पोलर जोन, ब्लूइश कलर में जो दिखाया है वो। अब देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, North Pole also known as Arctic Circle and South Pole also known as South Pole। अब थोड़ा सा आप लोग टेम्परेचर और सनलाइट पर ध्यान दे दो। देखो ट्रॉपिकल में टेम्परेचर कितना है, देखो साउथ ट्रॉपिकल में 22 डिग्री तक और नॉर्थ ट्रॉपिकल में 26 डिग्री तक। उसके बाद आप देख लो ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट में 24 डिग्री, और आप ऊपर चले जाओ यानी पोलर रीजन की तरफ -23 डिग्री से लेकर -7 डिग्री तक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? So you remember, and there is one more here written, that is some part of subtropical से लेकर पूरा tropical में sunlight is available throughout the year. Is it known to you? Why tropical and subtropical area are rich with plant diversity? It is because of things that हम बोलते हैं, हमेशा टर्म यूज करते हैं सबट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ आते हैं? अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट। और I think all of you should be known diversity is more in the tropical rainforest because of fact that large quantity or amount of sunflower is available throughout the year. Comparatively, I think many of you might be known toward the polar zone, sunlight is available for only 6 months. यानी पोलर रीजन में 6 month डे और 6 month नाइट पीरियड होता है। क्या आपको ये पता है? यस सर। Yes, sir. That's why polar regions are supposed to be colder regions. So I think it is now it is not यानी मेरे लिए इतना काफी है कि आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ये जोन्स दिखाए मैंने। जस्ट मिनट, हम कहाँ थे अभी पहले देखते हैं। हम मैप ऑफ वर्ल्ड, एक सेकंड, मैप ऑफ वर्ल्ड विथ ट्रॉपिकल subtropical and alpine zones so that the things would be clear to you। क्या आप लोग अभी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो तो अभी स्क्रीन पर जो मैप देखते हैं, इस मैप में मैं देखता हूँ थोड़ा ये एनलार्ज हो सकता है क्या? यस, इट इज एनलार्जिंग। और एनलार्ज होता है क्या? यस, इट इज एनलार्जिंग। नाउ द थिंग्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं? यहाँ देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मुझे पहला एक आप लोगों में से कोई बता दो कि क्या इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है?
नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ बोलते हैं? इक्वेटर, यानी ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके ऊपर वाले पूरे देश जो है नॉर्थ में, और इसके नीचे वाले जो पूरे देश है वो साउथ में। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी आप थोड़ा सा देख लो, इंडिया का सम पार्ट ऑफ गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के टिप वाले, यानी नॉर्थ ईस्ट के साउथ मोस्ट एंड तक अपना ये जो पूरा पार्ट है ये ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। इज इट क्लियर टू यू? हेलो? Yes, तो हम sir. ट्रॉपिकल में आते हैं। उसके बाद का हमारा पार्ट, यानी एमपी से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर तक का हमारा पूरा एरिया कहाँ आता है? टेम्परेट में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में शायद आपको पता होगा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स देखो बहुत गोरे रहते हैं या सफेद रहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Because of this country which is present toward the polar region. ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख लो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन भी गोरे रहते हैं, यूरोपियन भी गोरे रहते हैं। सो दैट द थिंग्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को ये थिंग क्लियर होनी चाहिए कि विच पार्ट और विच कंट्री इज ट्रॉपिकल एंड विच कंट्री इज टेम्परेट और शोइंग अल्पाइन जोन्स। सो द जोन्स आर क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद किसी भी फैमिली के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा कि ट्रॉपिकल मतलब क्या है, सब ट्रॉपिकल मतलब क्या है, और अंटार्कटिक या पोलर रीजन मतलब क्या है। द थिंग्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन द फैक्ट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइमोसी। हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए थे। Commonly called as Acacia family, it includes 40 genera and 2,000 species. Members are mostly distributed in tropical and subtropical region. मतलब 0 डिग्री से 65 डिग्री तक का जो एरिया है उसमें। In India represented by 12 genera and 90 species. अब ये 12 genera में से कौन से genera हमने देखे हैं? At least I have shown you the name: Acacia, Albizia, Enterolobium, Leucaena, Mimosa, Neptunia, Prosopis, Pithecolobium, Xylia, again Prosopis double आया है, Entada, Parkia, Adanthera and Piptadenia. So these are 12 genera which are available from our country. मैं country की बात कर रहा हूँ। और अगर हमारा एरिया बोलेंगे तो Acacia is available, Albizia is available, Leucaena is available, Mimosa is available, Prosopis is available, Pithecolobium is available. उसके बाद Parkia is available and Adanthera is available. मतलब इसमें से भी बहुत सारे जनरा हमारे लोकल एरियाज में अवेलेबल है। मैंने कल ढोरगुंज या एडनथेरिया पावेटा के बारे में बताया था, कौन से एरिया में मिलता है? हेलो, ढोरगुंज का मैंने कल आपको बताया था। क्या आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में जो ढोरगुंज है वो कहाँ मिलता है? मैंने बताया था। एनीबडी? यस, कोई बोलो। कोई भी नहीं बोल रहा। हेलो हेलो, क्या आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. यस सर। गुजरात में क्या? हाँ बोलो बोलो। सर याद नहीं आ रहा है। गुजरात याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? क्यों याद नहीं आ रहा है? मैंने एग्जांपल आपको बताया था, महाराज बाग में जो एक्वेरियम है उसके बाजू में अवेलेबल है, बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था दिल्ली के लाल किला का जो एरिया है, उस लाल किले के एरिया में मैंने बताया था कि इसके रेड कलर के सीड्स के गार्लैंड्स बनाते हैं। Yes, और sir. मैंने बताया था रामटेक जब आप जाते गढ़ मंदिर तो उस एरिया में भी इसके अडंतेरा के फ्रूट्स या प्लांट्स अवेलेबल है, मैंने बताया था। हमेशा आप एक बात ध्यान में रखो, जो भी छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाती, दिस वन इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यू शुड रिमेम्बर दिस इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट देखते हम। मैं बार बार फिर से अपनी प्रेजेंटेशन से यानी पीछे आना पड़ रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी द फैमिली। मतलब हमें अगर उसका इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? आप लोग फ्रेंडशिप किससे करते हैं? हेलो, जो हमारे जैसा हो, जो हमको जल्दी समझ ले।
जो आपके जैसा हो, आपको जिस समझ सकते हैं, या आपका कोई काम जो कर सकता है, नहीं तो आपके जो कोई काम आ सकता है, he or she becomes your friend. Is it right? तो Yes, वैसे sir. ही if we are unable to know regarding the name of plant and their economic importances, then there should not be closeness of understanding. Is it clear? Yes, sir. सर अच्छा, अभी मुझे और एक बात बता दो, क्या मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है? Yes, sir. हाँ? यस सर Yes, sir. चलो, economic importance. Sub family is not of much economic importance. Few members are, however, useful. Now the things are very clear. Each and every family, each and every plant of the family may not have importance, much more importance. पहला देखते हैं, Acacia catechu. Acacia catechu मतलब कौन सा? Anybody? Anybody? आपके सामने स्लाइड है, स्लाइड पर लिखा भी है, कोई बता सकता है? Which is Acacia catechu, name of the plant? कोई भी नहीं बता रहा? चलो सेकंड लाइन, ब्लैक प्लांट Acacia catechu के बाद की सेकंड लाइन में इस प्लांट का नाम है, आप नाम बताओ। कौन सा? सर बाबूड काथा. बड़े आवाज से बोलो, कोई जरूरत नहीं है, यानी भूल गए सर बाबूड बोलो। यस, कौन सा? बाबूड कत्था। हेलो, आप लोगों में से किसी ने पान खाए हैं? यस Yes, sir. पान को चूना लगाते और कत्था लगाते, एंड दिस कत्था इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Acacia catechu. हेलो, यस सर Yes, sir. या मराठी में उसको बोलते खैर। हेलो, Khair. खैर, Yes, sir. Acacia catechu। चलो, मैं भूल गया, Acacia catechu के बारे में शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। मैं थोड़ा सा एक और आसान काम कर देता, मैं आपको दिखा देता। Acacia catechu, CATECHUE, catechu जो भी है, देखते। चलो, दिख रहा है प्लांट, जस्ट लाइक बाबुल। हेलो, Acacia catechu। हम अभी Acacia catechu या कत्था डाल देते तो क्या आता है, देखते। अभी दिख रहा है आपको? हेलो, रेड कलर का, रेड Yes, कलर sir. कत्था इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Acacia catechu. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देन उसके बाद ये देखो क्या है, Acacia catechu एट बेस्ट प्राइस इन दिल्ली। Acacia catechu के प्लांट के स्लाइस बनाए हैं, नहीं तो वुड के पीसेस बनाए हैं। यहाँ देखो आप, कैटेचू पाउडर जो है अवेलेबल है, वुड के पीसेस दिखाए हैं, यहाँ देखो। और यहाँ फिर से और देखो आप, कैटेचू या कत्था दिखाया है। चलो, हम लोग इसके बारे में हम बाद में बात करते, पहले हम हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ आते। ने बुलक कार्ट का व्हील देखा है? हेलो, के व्हील में सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है, क्या उसके वो देखा है आपने? हाँ सर. किस चीज से बनता है? हेलो, वो नहीं पता सर आप बुलक कार्ट को लकड़ी के व्हील रहते हैं, ये मालूम है? Yes, sir. हाँ, एक मिनट, जस्ट मैं अभी आपको फिगर्स दिखा देता। क्या ये बुलक कार्ट्स के ऐसे वाले व्हील देखे हैं आपने? Yes, sir. हाँ मैं लोहे के व्हील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुलक कार्ट के वुडन व्हील्स जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ये सेंट्रल पोर्शन जो है, ये सेंट्रल पोर्शन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं। सेंट्रल पोर्शन का वुड जो है, इट इज फ्रॉम खैर या नहीं तो Acacia catechu। क्योंकि आपको शायद पता होगा, यहाँ एक फिगर है, ये कारपेंटर क्या कर रहा है, इसको बना रहा है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ वुड जो है उसको ठोक पीट करके बनाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई दिस वुड शुड बी हार्डेस्ट वुड, नहीं तो वो फूटना नहीं चाहिए। आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने
मैंने पहले आपको एक प्लांट बताया था झाइलिया झाइलोकार्पा, और दूसरा अभी प्लांट बताया है कि कौन सा, अकेसिया कैटेचू। सो रिगार्डिंग द अकेसिया कैटेचू का वुड कैसा रहता है, वेरी हार्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, मैं अभी और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता। प्रेस करने वाले या इस्त्री बनाने वाले जो लोग हैं, वो इस्त्री किस चीज से बनाते हैं? कोल, लकड़ी। हाँ। लकड़ी यानी कोल से। और कौन सा कोल यूज करते हैं? हेलो, हाँ, कोल कौन सा यूज करते हैं? एक मिनट, कोई एक बोलो। गलत, आपको पूरी इजाजत है, गलत बोले तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं बताता ना आपको सही क्या है। हाँ, यस, कोई भी एक। चारकोल सर। कौन सा? चारकोल। चारकोल, लेकिन कौन सा चारकोल? चारकोल अलग अलग टाइप का है। हाँ? अगर पता नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ। यस, जस्ट मिनट। सर आप ही बता दो। Normally, charcoal which is obtained from babul or खैर is used for by pressman. किस लिए वो यूज करते हैं मैं बताता हूँ। Calorific value of coal which is obtained from babul or coal is much more. यानी जिससे सबसे ज्यादा हीट पैदा होती, और that's why normally these people utilize charcoal coal or supposed to be coal which is produced from babul or खैर for फ्यूएल पर्पज। आपके ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आप अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कोयला जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? टाली, टाली बोलते हैं क्या? टाली जो भी है। तो आप अगर वहां जाओगे तो आप पता कर लो कोलसा कौन कौन से, वो बोलता है आपको अनगढ़ है, नहीं तो वो बोलता है आपको बाबुल का है, नहीं तो खैर का है। सबसे ज्यादा कोयला अगर कोई हीट देता है तो आपको मालूम है वो दैट इज योर दगड़ी कोळसा। लेकिन वुड से जो बनता है उस कोयले में सबसे ज्यादा हीट मिलती है, दैट इज फ्रॉम अकेसिया। अपना कौन सा, हाँ, अकेसिया कैटेचू। यस यस, अकेसिया कैटेचू। तो अकेसिया कैटेचू सर्व्स एज होस्ट फॉर लॅक इंसेक्ट। लॅक इंसेक्ट म्हणजे लाखेचे किडे. फ्रॉम दिस प्लांट कत्था इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड. गम अरेबिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अकेसिया निलोटिका. गम अरेबिक का मतलब है गोंद। हेलो हेलो, आप सभी लोग गोंद जानते हैं? यस सर। हाँ सर। गोंद किस लिए यूज करते हैं? एनीबडी? हेलो, रेजिन जैसा। हाँ, रेजिन जैसा। और दूसरा कोई पर्पस है उसका? हेलो, डिंक। हाँ हाँ, डिंक कशा करता वापरतात? सर लाडू बनवायसाठी. लाडू Yes, बनवण्यासाठी. exactly. That is for a preparation of food material. It is also used for a purpose of आप जिसको बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं, बाइंडिंग मटेरियल के लिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट सेकंड। हेलो, सर कौन सा स्पीसीज है वो का? अकेसिया अरेबिका बाबुल से भी मिलता है और खैर से भी मिलता है। जस्ट मिनट, आई एम ट्राइंग टू शो यू गम अरेबिक। जस्ट अ मिनट। सो आई हैव, आप लोग सुन रहे हैं ना सभी? यस यस Gum arabic is obtained from the bark of Acacia nilotica. शायद आपको पता होगा कि डिंक यूज करते हम फूड मटेरियल करके, डिंक का यूटिलाइजेशन हम करते, फॉर एग्जांपल बाइंडिंग मटेरियल करके, बहुत सारी चीजों के लिए गोंद यूज करते। क्या आप मेरे हाथ में देख रहे हैं? हेलो, नहीं सर, थोड़ा हाथ नीचे कर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाथ में अभी गोंद है, जस्ट मिनट।
अभी दिख रहा है आपको क्या नहीं? हेलो, यस सर। तो दिस वन इज अ गोंद। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ता हूँ, इसको देख लो, इस जस्ट मिनट, इसका अगर कलर देखोगे तो येलो कलर का है, इज इट राइट? यस सर। मैं दूसरा कलर दिखाता हूँ, इसका कलर कौन सा है? व्हाइटिश। और थोड़ा कलर दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा ब्लैकिश। और दिखाता हूँ, डार्क ब्राउन दिख रहा है। यस सर। तो दीज आर द डिफरेंट, यानी मैं कैमरे के सामने ऐसा ज्यादा ये नहीं कर सकता, नहीं तो मटेरियल गिर रहा है, आप देखेंगे। सो दिस वन इज नथिंग बट द गोंद विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ एकेसिया। एकेसिया एक तो होगा अरेबिका, नहीं तो डिफरेंट कलर की। शायद आपको पता होगा, number of peoples collect the gum or gond from different plants which might be known to you. So इन सभी गोंद के टाइप में गम एकेसिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, सरेश, ए टाइप ऑफ गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्पिजिया लिबेक, यानी शिरीष से। नेक्स्ट देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट। फ्लावर ऑफ एकेसिया डिकेरेंस वैरायटी डेल्बेटा yield a perfume, परफ्यूम भी yield करता है। The bark of acacia yield tannin which is used in leather tanning. क्या आपको लेदर टैनिंग इंडस्ट्री मालूम है? हम लोग जो यूज करते हैं लेदर, लेदर इज एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट एंड इट इज एसोसिएटेड विद सम ऑफ द लेदर प्रोटीन्स। और जब तक उसमें लेदर प्रोटीन्स है तब तक इट इज इन्फेक्टेड बाय फंगस और इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसलिए उसका टैनिंग करते। और टैनिंग और या टैनरी इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 2 cities ऑफ इंडिया। वन इज योर चेन्नई या मद्रास एंड अनदर इज इन अपना उत्तर प्रदेश का लखनऊ के तरफ। टैनिन इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड। The wood of Adanthera pavonia is powdered and yield a red dye. Adanthera pavonia का मतलब मैंने बताया था ढोरगुंज। Prosopis spicigera is grown as a hedge plant and also as a windbreaker in Rajasthan to check the spreading desert, act as a water indicator. बहुत सारे बाबुल के या एकेसिया के स्पीसीज है, these are indicators of water. Then next देखते हैं हम, ड्यूरेबल टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एकेसिया मेलानोजाइलॉन, लिस्टोमा सैबिक्यू, झाइलिया डोलाब्रिफोर्निस, दैट इज आयरनवुड। मतलब इन सभी जनरा का एक कॉमन कैरेक्टर अगर कोई है तो वुड इज हार्ड। अब इसके साथ साथ हमें देखने हैं विच आर द प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ प्लांट्स आर मोस्टली ट्री एंड श्रब, सो ऑल ऑफ यू आर नोन प्लांट्स का हर्बेसियस होना एडवांस्ड कैरेक्टर है। लीव्स आर स्टिपुलेट एंड स्पाइरली अरेंज, कुछ जनरा में स्टिपुलेट लीव्स है, दे शो प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल एंड दे आर स्पाइरली अरेंज। Flowers actinomorphic, bisexual and hypogynous. Petals mostly free. Stamens are numerous and free. क्या आप सभी ये टैक्सोनॉमिक टर्म से फैमिलियर है? हो गए अभी फैमिलियर? Yes, sir. न्यूमरस मीन्स मेनी, न्यूमरस मीन्स मेनी। अब एडवांस्ड फीचर देखो, लीव्स कंपाउंड एंड इन मेनी स्टिपुलेट्स, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। हमेशा स्टिप्यूल 3 अलग अलग चीजों में से कोई चीज में कन्वर्ट होता है। स्टिप्यूल देखो, प्रिकल्स, स्पाइन्स एंड इमरजेंसेस। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ। एलोवेरा में आपने प्रिकल्स देखे हैं, एलोवेरा के लीफ के लेटरल साइड में? Yes, sir. यस, Yes, sir. एलोवेरा के लेटरल साइड में जो है उसको प्रिकल्स बोलते। बाबुल में जो है उसको स्पाइन बोलते, और रोजेस में जो है उसको बोलते इमरजेंसेस। आपके ध्यान में आया? हेलो, नेक्स्ट देखो, लीव्स मॉडिफाइड इनटू फाइलोड इन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। अब फाइलोड का मतलब क्या है देखने के लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं सो दैट इट इज क्लियर टू यू। मैंने कल आपको एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के बारे में बताया था कि अपने कॉलेज के सामने जो पाटिल का ये है, वहाँ एकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस या वेडी बाबुल या ऑस्ट्रेलियन बाबुल अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था, सॉरी अभी मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है लेकिन मैं इमीडिएटली आपको दिखाता, मैंने कल भी आपको शायद बताया था। जस्ट अ मिनट।
Acacia auriculiformis. Auriculiformis अब दिखाते हैं। क्या आपने ये देखा है? हेलो हेलो सर। Yes, sir. देखा है? मैंने आपको बताया कि Yes, इसको sir. Yes, बाबू बोलते हैं, और नॉर्मली इसके ये जो लीप है, लीप नहीं है, दीज आर फाइलोड्स। फाइलोड मतलब लीप का पिटियोल का पोर्शन या बेस का पोर्शन जो है वो पोर्शन फ्लैट होता है, ग्रीन होता है। इट इज नॉट अ लीप, इट इज अ बेसल पोर्शन ऑफ अ लीप। और लीप जो है लैटरल साइड को आते हैं। ओनली लीव्स आर अवेलेबल इन ड्यूरिंग रेनी सीजन, जस्ट 2 to 3 days ओनली लीव्स आर अवेलेबल। मैं दिखाता हूं अगर कहीं फोटोग्राफ अवेलेबल है तो। Auriculiformis leaves, जस्ट मिनट। ये देखो, ये फ्लैट जो पोर्शन दिख रहा है ये फ्लैट पोर्शन नहीं। लीफ कहाँ रहते हैं? इस फ्लैट पोर्शन पे छोटे छोटे लीफ रहते हैं। यहाँ अपने पास फिलहाल फोटोग्राफ नहीं है। जस्ट मिनट, यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है। जस्ट मिनट, नहीं है, एक मिनट। Auriculiformis leaves and phyllodes। लीव्स बहुत छोटे रहते हैं। ये यहाँ है, देखो, ये देखो लैटरल साइड को लीफ दिख रहे हैं, लीफ दिख रहे हैं। Yes, हेलो। sir. और ये Yes, जो है sir. लेकिन हम हमेशा जो देखते वो फाइलोड ही देखते हैं। यहाँ भी देखो, ये लीफ है, लैटरल साइड के छोटे छोटे, सॉरी, ये फाइलोड है, मॉडिफाइड लीफ का स्टॉक, और ये नॉर्मल लीव्स है। सो दिस वन इज मॉडिफाइड। चलो, हमें इसके बारे में भी अभी कुछ ये नहीं है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी लग रहा है कि लेक्चर आज का खत्म हो गया, टाइम हो गया। लेकिन मैं आज का लेक्चर खत्म करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी आपको बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आज चाहता हूं कि ये फैमिली खत्म हो जाए। ओके? हेलो? Yes, sir. अभी yes, sir. एडवांस कैरेक्टर में देखो, leaves are compound and in many stipules are modified into spine. Leaves modified into phylloid in Australian acacia. उसके बाद देखो, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है स्पष्टपणे न दिसणारी किंवा थोडीशी छोटी। कैलिक्स इज गैमोसेपैलस, मतलब सेपल्स है फ्यूज्ड। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेटल एंड स्टैमेन माइमोसा में। गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी unilocular. Fruit is simple and pod, and seeds are present in lumentum type of a fruit. So these are the characteristic features of advanced nature from this family. Now you go through these different photographs. अब इसमें ये जो सेंटर का ब्लैक एंड व्हाइट है, Acacia nilotica या Acacia arabica का है ये। So you observe here the main stem, उस पर ये lateral branch, that is a leaf, रैचिस है। इस रैचिस पर लैटरल साइड को कंपाउंड लिपलेट्स है। मैंने पहले ही आपको बताया था नंबर ऑफ लिपलेट्स के पेयर कितने, 9 से 12 तक लेके। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस ग्लोबोस टाइप का ये जो येलो कलर के फ्लावर दिख रहे हैं वो। उसके बाद यू जस्ट ऑब्जर्व द एलेस ऑफ फ्लावर, सेंट्रल गाइनोसियम and large number of numerous stamens. So these are the characteristic feature. Now you observe here carpel, monocarpellary syncarpus ori superior. उसके बाद ओरी का सेक्शन, और दिस वन इज फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब मैं फिर से आपको दूसरा फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मैं दूसरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन दिस यू कैन ऑब्जर्व द फ्रूट एंड इट इज ऑफ लोमेंटम टाइप। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. लोमेंटम मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। नीचे, उसके नीचे जो नेक्स्ट टाइम ये कौन सा है फोटोग्राफ, कोई बताएगा किस चीज का है? एनीबडी? गम का है। यस, एग्जैक्टली गम। उसके नीचे जो है ये डाई का है, कत्था जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका है। यस। उसके बाद दिस वन इज अ बार्क ऑफ अकेसिया, अकेसिया निलोटिका या अकेसिया अरेबिका बार्क। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अकेसिया निलोटिका या अरेबिका से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अ ग्लूकोसाइडल नेचर ऑफ कंपाउंड, दैट इज टैनिन। शायद आपने देखा होगा आरा मशीन के सामने बहुत सारे वुडन लॉक
रहते, और उस वुडन लॉग से सिर्फ बार्क निकाल लेते फॉर पर्पज ऑफ फ्यूल और फॉर पर्पज ऑफ टैनिन, एंड दिस वन इज अ ट्री ऑफ अकेसिया अरेबिका। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे लिए जरूरी दैट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इतना सब कुछ होने के बाद हम फैमिली की तरफ जा रहे हैं। अब देखो हर्ब्स, हर्ब कौन है? माइमोसा हर्ब। अभी अभी मैंने आप लोगों को पूछा था कि माइमोसा पुडिका या लाजाड़ू क्या है, आपने बताया था कि इट इज अ श्रब। अगर 1 से 3 फीट तक लेकर है तो उसको श्रब बोलते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस इट इज हर्ब। मैं फिर से आपको बताता हूँ, माइमोसा प्लांट इज अवेलेबल इन अवर कैंपस आल्सो। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते तो लेफ्ट हैंड साइड का जो झंडे के तरफ का पोर्शन है उस एरिया में बहुत सारा माइमोसा अवेलेबल है। देन क्लाइंबर इन एंटॅडा, एंटॅडा फोइटिडा म्हणजे जिबली क्लाइंबर आहे, मोठ्या मोठ्या झाडांवरती वाढणारा, अँड इट इज व्हेरी कॉमन इन वेस्टर्न घाट, अँड ट्री इन अकॅसिया अल्बिजिया, hydrophytic in Neptunia. Many members are xerophytic, that is Acacia and Prosopis. Is it clear to you? Yes, Yes. sir. Okay. Root, taproot, much branched and deep. Stem, erect or climbing, woody, branched, angular or cylindrical, solid, covered with the bark. Some species yield gum, sometimes spiny. All the characteristic features you have observed in whatever photographs shown to you. Is it right? Yes, sir. ओके। लीफ, कॉलाइन। अब कॉलाइन के बाद में लिखा है रामल। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलाइन और रामल लीफ का मतलब क्या है। सपोज दिस इज अ मेन स्टेम, अगर मेन स्टेम पर डायरेक्ट लीफ आया तो उसको बोलते हैं कॉलाइन। आपके ध्यान में आ रहा है? यस हेलो। सर। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रासिकेसी फैमिली में देखो, लीफ डायरेक्टली स्टेम पर आते थे, इसीलिए दैट इज कॉलाइन। और लीफ जब मेन स्टेम पर भी है और उसको लैटरल ब्रांच भी है और उसके ऊपर है तो दे आर नोन एज अ रामल। मैं जस्ट मिनट आपको ये भी टर्म पहले क्लियर करना चाहता। सो इट इज रामल एंड कोलाइन, रामल एंड कोलाइन। जस्ट मिनट। रामल एंड कोलाइन लीव्स। एक मिनट। What are the कॉलाइन एंड रामल लीव्स? आप थोड़ा सा अभी इसके तरफ ध्यान दे दो, जस्ट मिनट। कॉलाइन एंड रामल लीव्स, देखो लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन स्टेम आर कॉल्ड एज कॉलाइन। मैं बार बार दिखा रहा था आपको, डायरेक्ट स्टेम पे आया तो एग्जांपल्स इंक्लूड रोज, मेज लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल स्टेम ब्रांचेस आर कॉल्ड एज रामल। एग्जांपल्स इंक्लूडिंग मैंगो, दस द करेक्ट आंसर इज रामल। मतलब कॉलन मतलब डायरेक्ट आया तो, और ब्रांचेस पे आ रहे तो रामल। सो लीव्स अराइजिंग का ये क्लियर हो गया। जस्ट मिनट, अगर we want to clear it more, just ramal and कॉलाइन leaves, just a minute। ये देखो leaf insertion, कॉलाइन leaves born on the main stem are known as a कॉलाइन and leaves born on the lateral branches are known as ramal. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then we should continue further। हम वेजिटेटिव कैरेक्टर देख रहे थे, जस्ट मिनट। स्टेम नहीं, ये हो गया। कॉलाइन एंड रामल अल्टरनेट पिन्नेट और बाइपिन्नेट compound stipulates, stipules may be modified into spine, petiolate in some species of acacia, petiole becomes flattened into phylloid and leaves fall down, leaflets show movement हमने देखी थी माइमोसा में। उसके बाद नेक्स्ट, अभी ये सारे बहुत सारे लीफ आपको दिखा रहा हूं। आपको दिख रहा है कंपाउंड लीफ को क्यों है? हेलो। Yes, sir. उसके बाद ये शमी के लीफ और दीज आर द स्पाइन्स।
उसके बाद ये बाबुल का लोमेंटम, और यहाँ बाबुल का लोमेंटम या फ्रूट जो है वो ओपन किया हुआ. सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नंबर ऑफ एंथर अगर आपको देखना है तो फ्लोरल डायग्राम की तरफ देखो. नंबर ऑफ एंथर कितने हैं? बहुत सारे. दैट इज न्यूमरस. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट देखते. फ्लोरल कैरेक्टर इनफ्लोरेसेंस. कंपाउंड साइमोज हेड. कंपाउंड है लेकिन साइमोज हेड है. आप हेड भी देखोगे तो कैसे है, देखो, बेस की तरफ मैच्योर और अपेक्स की तरफ यंग. फ्लावर यूजुअली ससाइल. फ्लावर ससाइल है. आप बोलोगे सर फ्लावर ससाइल कैसे? आपको मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ. फ्लावर को यहाँ कोई स्टॉक है पकड़ने के लिए? डंडी है? नहीं, फ्लावर को नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस को है. तो फ्लावर्स आर ससाइल. नेक्स्ट देखते. यूजुअली ससाइल, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, ब्रैक्टिएट, हाइपोगाइनस, कंप्लीट, स्मॉल, येलो एंड फ्रेग्रेंट. हो सकता है अलग अलग कलर भी होंगे. अब फ्लोरल कैरेक्टर, उसमें कैलिक्स देखते. सेपल्स 5, गैमोसेपेलस, फॉल्वेट और इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट है पार्किया में, पार्किया बिग्लोनिजा में. ग्रीन और पेटेलॉइड, अकेसिया निलोटिका विथ इंफीरियर ओरी. करोला, पेटल्स 5, पॉलीपेटैलस और गैमोपेटैलस. गैमोपेटैलस है अकेसिया और अल्बिजिया में. वायलेट, इंफीरियर. अब एंड्रोसियम. 4 फ्री इन माइमोसा. माइमोसिस में 4 फ्री है. 10 free in prosopis, indefinite and monoidalpus in albizia. Filaments long, anther diathecus, pollen grain open in packets, often gland dotted to attract the insect. Next देखो gynoecium, monocarpellary. Mono means single. Ori superior, unilocular. Unilocular का मतलब क्या है? ओरी सबसे टॉप और बेस से बाकी सब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम डेवलप होते हैं. Ori superior, unilocular, marginal placentation, one or many ovules in a carpel, style long and filiform, stigma minute and simple, fruit, legume or lomentum, seeds non-endospermic. और फ्लोरल फॉर्मूला दिया है ब्रैक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल. K4 ब्रैकेट में डाला है और 5 मतलब गैमोसेपेलस कंडीशन है. C4 और 5 फ्री है. एंड्रोसियम 10 or infinite, gynoecium 1, ori superior. These are some of the floral diagram of different members, and these are third party links. क्या आपके ध्यान में है? मैं हमेशा जो थर्ड पार्टी लिंक दिखाता हूँ वो थर्ड पार्टी लिंक को क्लिक करके आपको देखना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. Yes. मैं जस्ट दिखाता हूं. मैंने एक थर्ड पार्टी लिंक को समझ लो क्लिक किया. अब क्लिक करने के बाद क्या होता है, देखो आपके लिए वो पेज ओपन होता है जो भी दिखाया. और इस पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. मैं दूसरा और एक दिखाता. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दूसरी लिंक पर क्लिक किया. ये सपोज देखो जस्ट मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं, बहुत सारे पेजेस आपके सामने आएंगे. एंड दीज आर द थर्ड पार्टी. मतलब आपको अगर उसको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ, हाँ मैं ढूंढ रहा था ये 2 फोटो. ये लेफ्ट एंड राइट साइड के जो फोटो है कौन से प्लांट के हैं? कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? मैं थोड़ा आपके लिए वो स्ट्रेट करता हूँ सो दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ये कौन से प्लांट के फोटोग्राफ है? कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? ये फोटोग्राफ है अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस या ऑस्ट्रेलियन बाबुल के. ध्यान में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. You have any problem? You want to ask anything? Hello. No, sir. बोलो. सर आपने वो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में मतलब फाइलोड का जो बताया, हाँ. वो सिर्फ मतलब माइमोसेसी में सिर्फ वही एक प्लांट है क्या जिसमें वो कैरेक्टर है?
यस, वही एक प्लांट है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके सर। हाँ, चिंच विलायत का हमेशा इसके लिए एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। चिंच विलायत यानी पितोकोलोबियम डलसाई, या उसका नेम है इंगा डलसाई। अच्छा, मैक्सिमम प्रेजेंटी कितनी थी आज? 68। 68। अभी भी प्रेजेंटी लोगों की बढ़नी चाहिए। मैं अभी 1-2 क्लासेस के बाद डिक्लेयर ही करने वाला हूँ कि अगर 60, 70 लोग करीबन ज्वाइन नहीं होते तो मैं क्लासेस ही नहीं लेता। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा आज की डेट में अपना सिलेबस खत्म हो गया है 3 यूनिट्स। इज इट राइट? यस सर। Yes, sir. हमारे कितने यूनिट कंप्लीट हो गए हैं? 3, 3। और अपने सिलेबस में यूनिट कितने हैं? 4। 4. मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने मन में लिया तो एक हफ्ते में अपना एंटायर ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है कि XYZ टॉपिक वापस फिर से लेना चाहिए, अगर आपको लगता है बहुत जल्दी हो रही, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आसानी से मुझे बता सकते। डोंट हेजिटेट। यू इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क इट। इज इट राइट? यस Yes, सर। sir. चलो, तो लीव हो जाओ अभी। थैंक यू वेरी मच। चलो लीव Thank you, करो। sir. थैंक यू करो। हम्म